Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. Let's study maths for class 4. Today we are going to study chapter number 7, geometry. I know you have studied geometry section of mathematics in previous class. Today we are going to have some review of the basic concepts of geometry. Let's first start from the meanings of geometry. Geo means earth and metry means measure. It simply means measurement about earth or everything which relates to earth. अर्थ पे जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनकी मेजरमेंट को ज्योमेट्री कहा जाता है. Let's study about line. A line is a set of points joining a straight path. It has no ending point. लाइन बेटा सेट ऑफ पॉइंट्स को कहा जाता है जो स्ट्रेट हो और उसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो. यू कैन सी अ लाइन ऑन योर स्क्रीन. It is as simple as you draw on your copy, but इस लाइन के एजेस पर बेटा आपको दो एरोज नजर आ रहे होंगे और ज्योमेट्री में ये एरोज इन्फिनिटी शो करते हैं. इन्फिनिटी मीन्स दैट दिस लाइन कैन फर्दर मूव फ्रॉम द बोथ एजेस, फ्रॉम द बोथ एंड्स. दोनों एंड से ये लाइन फर्दर मूव कर सकती है, इसलिए इसके कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं. We give this line a name A and B. We symbolically write it as AB and BA. और इसके टॉप पे बेटा आपको लाइन का सिंबल नजर आ रहा होगा which represents the line and we read it as line AB or line BA. This road on your screen is the best example of line because it is straight in its path and it has no ending point. आपको पता है रोड का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट और लाइन में बेटा ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है. A line segment is a set of points joining a straight path but it has two ending points. लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता और लाइन सेगमेंट के टू एंडिंग पॉइंट्स होते हैं. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये लाइन बिल्कुल प्रीवियस लाइन की ही तरह है बेटा, बट इसके दोनों एजेस पर एरोज नहीं बल्कि दो पॉइंट्स मेंशन हैं. ये पॉइंट्स इस लाइन की लिमिटेशंस शो करते हैं, यानी कि ये लाइन अपने दोनों एजेस या दोनों एंड से फर्दर मूव नहीं कर सकती है. सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम देते हैं P and Q. Alright, we symbolically write it as PQ and QP. और इसके टॉप पे भी बेटा आपको लाइन सेगमेंट का सिंबल नजर आ रहा होगा. It represents line segment PQ and QP. This lines on road, pencil and ruler in your hand shows the examples of line segment because they are straight in their paths and they all have their starting and ending points. Right? Let's further move. Ray. A ray is a set of points joining a straight path. It has one ending point. ray और लाइन का भी बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है बेटा कि रे का वन एंडिंग पॉइंट होता है. यू कैन सी अ लाइन ऑन योर स्क्रीन. इसके बेटे एक एज पर एरो है और दूसरा एज पे एरो नहीं है. दैट मीन्स कि ये अपने एरो वाले एज की तरफ से फर्दर मूव कर सकती है जबकि दूसरा एज इसका एंडिंग पॉइंट है. क्लियर बेटा? गिव इट दिस रे अ नेम. Y and Z. We symbolically write it as YZ and ZY. इसके टॉप पे भी बेटा आपको रे का सिंबल नजर आ रहा होगा.
This torchlight and the sunlight are the best examples of ray because these lights have a starting point but it has no ending point. Parallel lines. Two lines which never meet with each other and the distance remains same is called parallel lines. बेटा ये वो लाइंस होती हैं जो फ्रेंड्स तो होती हैं एक दूसरे की लेकिन एक दूसरे से कभी नहीं मिलती और इनका डिस्टेंस भी हमेशा सेम रहता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी हैव अ लाइन A and B and we have another line P and Q. We symbolically write this parallel line as AB, लाइन सेगमेंट का सिंबल ऊपर और पैरेलल लाइंस का सिंबल सेंटर में आएगा और उसके बाद हम दूसरी पैरेलल लाइन लिखेंगे PQ. क्लियर बेटा? ये दोनों पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी और इनका डिस्टेंस भी हमेशा सेम रहेगा. This railway track is the best example of parallel line. You can see the lines on this railway track and these lines are never going to meet with each other और इसका distance भी आपको पता है हमेशा same रहेगा. Let's start exercise 7A, page number 160, question number 5. The question is, draw straight lines of the following lengths using a ruler and divider. स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है हमें ऑफ द गिवन लेंथ, वो लेंथ जो हमें गिवन है. मैंने बेटा पार्ट सी लिया है आपकी बुक का एंड द लेंथ विच इज़ गिवन हेयर दैट इज़ 10 सेंटीमीटर. लेकिन ये स्ट्रेट लाइंस हमें क्या यूज़ करते हुए ड्रॉ करनी है बेटा? हमें यूज़ करना है सबसे पहले रूलर. अच्छा, रूलर से आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं बेटा. ये रूलर आप सबके पास मौजूद होता है जिसे आप यहाँ आपको छोटा सा cm लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, सेंटीमीटर्स. हम हमेशा लाइंस के मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में करते हैं. सेंटीमीटर्स 0 से स्टार्ट होते हैं बेटा. 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5 and onwards till 15. इससे आगे भी सेंटीमीटर्स हो सकते हैं. इस रूलर में हमारे पास 15 सेंटीमीटर्स तक गिवन है. ये रूलर और इसके साथ एक और चीज़ हमें यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है एंड दैट इज़ डिवाइडर. यू कैन सी डिवाइडर ऑन योर स्क्रीन. ये भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होता है बेटा, लेकिन नॉर्मली हम इसका कोई यूज़ नहीं करते. ये डिवाइडर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है रूलर ही की तरह. कैन यू सी दिस इन योर ज्योमेट्री बॉक्स? यस, नाउ टेक इट आउट. इस डिवाइडर को यूज़ करते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. नाउ हाउ टू ड्रॉ दिस? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अ रूलर ऑन योर कॉपी. सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ योर ओन चॉइस. किसी भी लेंथ की आप एक लाइन ड्रॉ कर लें. मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली 13 सेंटीमीटर्स की और इसको नाम दे दिया है हमने फॉर एग्जाम्पल A एंड B. जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि हम उसके एजेस पे क्या मेंशन करते हैं बेटा? एरोज मेंशन करते हैं. ऑलराइट, ये एरोज इन्फिनिटी शो करते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह पता है. अब हमें एक इन्फिनाइट लाइन तो नहीं बनानी थी ना, हमें क्या बनाना था? हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी थी 10 सेंटीमीटर्स की. तो वो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू टेक अ रूलर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन अ डिवाइडर. अब डिवाइडर का यूज़ क्या है ये देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अ रूलर. ऑलराइट, ये रूलर रखते हुए सबसे पहले तो ये देख लेना है कि हमने सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट को रखना है. ऑलराइट, सेंटीमीटर की मेजरमेंट्स हमें इस डिवाइडर से
कितनी ओपन करनी है बेटा? जितनी हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? 10 सेंटीमीटर्स। तो इस रूलर को यहाँ रखेंगे, इस डिवाइडर को ओपन कर देंगे 10 सेंटीमीटर। 0 पे हम इसका एक एज रखेंगे बेटा डिवाइडर का, और दूसरा एज हम कहाँ रख देंगे? 10 सेंटीमीटर्स की लाइन पर। यू कैन सी दिस, आपको नज़र आ रहा है इसका एक एज कहाँ है? बिल्कुल 0 सेंटीमीटर पे, और दूसरा एज कहाँ है? 10 सेंटीमीटर्स पे। क्लियर? ये डिवाइडर ओपन हो गया। लेट्स इस डिवाइडर को इसकी बैक से होल्ड करना है बेटा। रिमेंबर दिस, डिवाइडर या कंपास कभी भी यहाँ से होल्ड नहीं होता। अगर यहाँ से होल्ड करेंगे हम तो इसकी मेजरमेंट आउट हो जाएगी, इसलिए हमेशा हम डिवाइडर को कहाँ से होल्ड करते हैं? इसकी बैक टेल से होल्ड करते हैं, राइट? नाउ टेक आउट द रूलर, लेट्स पुट दिस डिवाइडर ऑन द लाइन विच यू हैव ड्रॉन। ओके, इस डिवाइडर के क्योंकि एजेस होते हैं बेटा, तो ये बहुत इजीली फिक्स हो जाता है पेपर पे। ओके, लेकिन इसको इस तरह भी फिक्स नहीं करना कि आप अपनी कॉपी का पेज टीयर कर दें। ये मैंने इसको यहाँ फिक्स किया, और यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को एक और नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल P एंड Q। क्लियर? और यहाँ जहाँ मैंने ये डिवाइडर रखा उसके एजेस पर मैंने ये 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए। ऑलराइट, नाउ दीज पॉइंट्स शोज द लेंथ ऑफ, क्या लेंथ शो करते हैं ये? 10 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स हमने जो लाइन ड्रॉ की वो 10 सेंटीमीटर्स की P और Q लाइन ड्रॉ की। लेट्स राइट आंसर हेयर। PQ, the symbol of line segment, is equals to 10 centimeter is the answer, and you have to write this on your lining page beta. Let's solve question number 10. Take XY is equals to 12 centimeter and KL is equals to 12 centimeter. Draw XY parallel to, ये सिंबल मैंने आपको बताया था किसका होता है? पैरेलल टू का सिंबल होता है KL। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है XY जो कि पैरेलल हो KL के, बट यूजिंग अ सेट स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ लाइन XY ऑफ 12 सेंटीमीटर, 11, 12. Give it a name X and Y as it is already given in the question. Now we need to draw a line parallel to XY. This is called the set square in your geometry box. Let's first of all put the set square to this line. अच्छा बेटा, इस सेट स्क्वायर की ये जो सेंटीमीटर्स वाली मेजरमेंट है इसको हम पुट करेंगे इस तरह अपनी लाइन पे, और अपना रूलर इस सेट स्क्वायर के साथ सेट करेंगे बेटा। ठीक है, हैव यू सीन दिस? सबसे पहले हमने लॉन्गर साइड जो है वो अपनी लॉन्गर साइड सेट स्क्वायर की सेट की लाइन XY पे, और उसके साथ हमने स्केल सेट कर दिया। कीपिंग दिस रूलर फिक्स, आई एम गोइंग टू रोटेट द सेट स्क्वायर। ऑलराइट बेटा, क्योंकि द डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये डिस्टेंस मैं अपनी मर्जी से ले सकती हूँ। मैंने ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर्स का ले लिया है, 2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस लिया बेटा मैंने, और एक और लाइन ऑफ द सेम लेंथ 12 सेंटीमीटर्स की ही एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी बेटा। सेकेंड लाइन जो हमें ड्रॉ करनी थी वो कौन सी करनी थी?
KL. Let's give it a name, K and L. Now you can see this, we have drawn a line XY and parallel to K and L. ये दोनों लाइंस की मेजरमेंट बेटा कितने सेंटीमीटर्स है? 12 centimeters. So hence we have achieved the requirement to draw the parallel lines with the help of set square. Now you can easily solve the home assignment, which is definitions of line, segment, ray and parallel line, and question number 4, which is all about measurement of line segment, and rest of the questions are already solved in the video. Thank you so much. Goodbye.